नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा आपके फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा की के साथ आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर के अर्थशास्त्र के द्वारा फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइज MRPI फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से 56th AD श्रॉफ मेमोरियल एजुकेशन कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के विभिन्न कोर्स के 35 स्टूडेंट ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याएं और उनके निवारण संबंधी विषयों पर चर्चा करना था। जी हाँ, आज का प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अर्थशास्त्र विभाग की HOD और स्टाफ रमनीत कौर, बबीला चौहान और करमजीत मैडम ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई और कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र गांधी और प्रिंसिपल डॉक्टर अनु अत्रेजा ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए नजर आई और विजेताओं और प्रतिभाओं को बधाइयाँ भी दी। उन्हें भविष्य में ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का सुझाव दिया और कहा कि ऐसे प्रोग्राम में भाग लेने से बच्चों का मनोबल बढ़ता है व हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को समझने में सहयोग मिलता है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर लिखें। जब कोई व्यक्ति डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से कॉपीराइट के मामलों का उल्लंघन करता है, जैसे कोई गैर कानूनी तरीके से गेम, सॉन्ग, वीडियो आदि को डाउनलोड करना। चौथा है पहचान की चोरी। इस साइबर अपराध में एक अपराधी किसी व्यक्ति के बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की संवेदनशील जानकारी को एकत्रित करता है ताकि इससे पैसे की निकासी हो सके और कोई ऑनलाइन चीज परचेज की जा सके। साइबर अपराध के कारण डिजिटल जागरूकता की कमी। भारत में डिजिटल जागरूकता की कमी है। जैसे कोई मैसेज या ईमेल के जरिए को कहता है कि आपकी कोई कार खुल रही है, तो पहले आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपए डालने होंगे, तब जाकर वह आपको ट्रांसफर होगी। दूसरा है तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी। From the economics department, thank you with us. Thank you so much, ma'am. Everything. You can't have successful education reform or other reform if you don't have a strong economy. Good afternoon to all the respected teachers and my dear friends. My name is Prachi Mitchell. I am the student of MA Economics final year, and I am going to be speaking to you today about managing the economy during pandemic. The emergency and spread of infectious disease with pandemic potential occurred regularly throughout the history. There have been 249 pandemics throughout recorded history from the 1200 BC up to the COVID-19 virus. Major pandemics such as plague, cholera, flu, several acute respiratory syndrome coronavirus have already afflicted the humanity. Recently, the world has faced the new coronavirus disease or the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic is one of the most dangerous challenges this world has faced. It is above all human crisis with several health and socio-economic consequences. The pandemic posed a short-term fiscal impact and a long-term economic impact on the nations around the world. It also resulted in declining tax revenue and increased expenditure, which caused fiscal stress, especially in low and middle-income countries. The pandemic posed a significant disruption to global trade. In 2020, global trade fell by 8% by providing direct capital injections through grants and loans, increasing activity through public-private partnership structure, attracting inflow of foreign direct investments, promoting domestic spending on domestically produced goods and services through tax rebate and low interest rate, etc. Economic recovery is central to the forward-looking agenda. In India, the government continues to provide fiscal support to the economy. Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. It is a comprehensive relief package of rupees 1.70 lakh for the poor people to fight against during the COVID-19 pandemic.
More than 42 crore poor people receive financial assist of rupees 68,820 crore. 80 crore people got 5 kg of wheat or rice and 1 kg of pulses for free every month during pandemic. In India, the Union Budget 2020-21 has announced a number of measures to support economic growth. For example, a holistic approach to हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर ने बताया कि हमारी जीडीपी अब 3.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और इसे 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें बहुत से कार्य करने होंगे। माइनिंग, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए हमने अपनी माइनिंग को करना होगा, नई नई स्किल्स लानी होगी और इनोवेशन करने होंगे। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स की कमी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास स्किल नहीं है। so far is purely destructive. We've created life in our own image. A very good afternoon to present one and all here. This is Niksha in front of you. Today I stand over here to present my views on cybercrime and its solution. As we all know about crime, but what is cybercrime? Let me explain. तो ज्यादा इंटरनेट ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 560 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 660 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 59 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਪ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ तक कर रही है। तो प्रिंसिपल मैम जैसे कि हमारे बीच हैं, मैं मैम का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद भी करना चाहूंगी कि अपने बिजी शेड्यूल में से मैम ने हमें थोड़ा सा टाइम दिया और थोड़ा सा नहीं बहुत सारा ले लिया है हमने तो थोड़ा सा वक्त मैं और लूंगी। हमने लास्ट मंथ इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया था, जिस पर हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और कैप्शन राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। तो मैं चाहती हूँ कि मैम प्लीज आप स्टेज पे आए, हमारे स्टूडेंट्स को, आप हमारे जो विनर्स हैं उन कॉम्पिटिशन के प्लीज प्राइजेस। मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मुझे लगता है मैं बच्चों के साथ 2 बातें जरूर कर लूं, क्योंकि ये मौका कम मिलता है। तो बेसिकली मैं टीचर हूँ और मैंने 35 इयर्स इस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में काम किया है, पढ़ाया है। तो आपको देखकर और आपकी एनर्जी देखकर, आप कितने एजाइल लग रहे हो, वो सब देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए बेटा। आप सब डिग्री लेने आए हो, पढ़ने आए हो, और कोई 3 इयर्स का कोर्स कर रहा है, कोई 2 इयर्स का कोर्स कर रहा है। आप बहुत बढ़िया से डिग्री लेके जाओगे, लेकिन उस डिग्री के साथ आप और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लेकर जाइए। ये मैंने टैलेंट शो पे भी कहा, हमारे इंस्टीट्यूशन में एंडलेस में पार्टिसिपेट कीजिए और कभी भी आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होता पार्टिसिपेट करने से। जब आप स्टेज पे आते हो, डाइस पे खड़े होकर पहली बार बोलते हो, तो यू फील सो गुड आफ्टर दैट। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतने सर्टिफिकेट इकट्ठे होते जाएंगे। तो आप अपनी डिग्री तो लेकर जाओगे, उसके साथ जितनी और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, यू विल बी हैविंग सो मेनी सर्टिफिकेट्स। तो अगर आज के इस कंपटीशन में कोई बच्चा पहली बार डाइस पे आया, तो मैं सोचती हूँ कि ये हमारे कंपटीशन की सक्सेस है। जो भी बच्चे, कुछ बच्चे होंगे जो पहली बार आके बोले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको अच्छा लगता है,
और इंस्पायर करते हो आप दूसरे बच्चों को। और जैसा कि अभी शमी मैम ने बोला, प्राइज और विनिंग इम्पोर्टेंट है। जो MR5 फाउंडेशन है, फोरम ऑफ फ्री एंटरप्राइज मुंबई, वो बहुत जल्दी ही एक लीडरशिप कैंप करेंगे जिसमें लिमिटेड स्कोप है उसका, आई मीन लिमिटेड पार्टिसिपेशन है। ओनली 80 स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट। तो जैसे ही उसका नोटिस बबला मैम देंगे आपको, आप जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराना, और वो करने के बाद आप अपने आप में कितना चेंज फील करोगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे ट्रांजिशन हो गया है बिल्कुल। तो उसको आप मिस नहीं कीजिए और उसको पार्टिसिपेट उसमें जरूर करना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से एंड ऑल द बेस्ट। आपके सारे सपने जो आप कॉलेज में लेके आए हो वो साकार हो, पूरे हो, यही मैं आपके लिए विश करती हूँ। थैंक यू मैम। एवरी ईयर हम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के लिए कुछ मेंबर्स का चुनाव करते हैं, क्योंकि हर बच्चे में एक लीडर छुपा है और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को बाहर लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने इकोनॉमिक्स एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स चुने हैं। तो मैम, मैं चाहूंगी कि आप प्लीज उन बच्चों को बैजेस लगाकर अपना आशीर्वाद दीजिए। तो इकोनॉमिक्स एसोसिएशन में पहला मेंबर है हमारी प्रेसिडेंट प्राची फ्रॉम MA इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर। नेक्स्ट सेक्रेटरी के लिए उषा, MA इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर, प्लीज रेडी रहिए। A big round of applause for her. Usha from MA Economics final year for secretary. और 4 हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं MA Economics फॉर द सेकेंड प्राइज। 2 सेकेंड प्राइजेस हैं। ये दोनों बच्चे एक साथ ही आ जाएं। मानसी फ्रॉम BA फॉर थर्ड प्राइज एंड समीक्षा फ्रॉम BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स फॉर द थर्ड प्राइज। थर्ड प्राइज वाले स्टूडेंट्स आ जाएं। मानसी फ्रॉम BA एंड समीक्षा फ्रॉम BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और कंसोलेशन प्राइजेस के लिए लतिका सैनी फ्रॉम BSc CNG एंड अनन्या फ्रॉम BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। प्लीज कम फास्ट। Next, I announce the results of on-the-spot caption writing competitions. Students, please be ready. Sakshi from BA. मुझ वर्षा को दीजिए इजाज़त और बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।